मोअज़्ज़ज़ अरकान, जनाब स्पीकर, ये क्वेश्चन आवर इज़ ओवर और ये एक बड़ी दुख की बात है कि इस पे इतनी मेहनत होती है और ये क्वेश्चन आवर गवर्नमेंट की बेहिसी की वजह से आज हम फिर नामुकम्मल हुआ है। अभी कॉलिंग अटेंशन नोटिस के बाद आपको मैं मौका देता हूँ असद कैसर साहब, एक अनाउंसमेंट है, तशरीफ रखें। May I have the attention of the House? The honourable members are informed that the students from the University of Peshawar are sitting in the visitors' gallery. We welcome them. Leave applications. Muhammad Muazzam Ali Khan has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Malik Asad Sikandar has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Shugufta Jumani has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Chaudhry Mahmood Bashir Virk Sahab has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Mr. Muhammad Afzal has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Sayyid Mustafa Kamal has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Mukhtar Ahmad Malik has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Mr. Muhammad Muin Amir Pirzada has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Khoja Izharul Hasan has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Jam Abdul Karim Bijar has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Mr. Muhammad Arshad Sahi has requested for the grant of leave. Leave granted? Granted. Sayyid Raza Ali Gilani has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Mr. Asya Nazir has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Shafqat Abbas has requested for the grant of leave. Leave granted? Granted. Mr. Muhammad Nawaz Khan has requested for the grant of leave. Leave granted? Granted. Mr. Jamshed Ahmad has requested for the grant of leave. Leave granted? Granted. Mr. Ali Asghar Khan has requested for the grant of leave. Leave granted? Granted. Mr. Fazal Amin Khan has requested for the grant of leave. Leave granted? Granted. Mr. Fatehullah Khan has requested for the grant of leave. Leave granted? Granted. Mr. Hinna Rabbani Khar has requested for the grant of leave. Leave granted? Granted. Sayyid Hussain Tariq has requested for the grant of leave. Leave granted? Granted. Sayyid Ali Qasim Gilani has requested for the grant of leave. Leave granted? Granted. Mr. Awais Haider Jakhar has requested for the grant of leave. Leave granted? Granted. Mr. Nasir Iqbal Bosal has requested for the grant of leave. Leave granted? Granted. Mr. Gohar Ali Khan has requested for the grant of leave. Leave granted? Granted. Mr. Sajid Mehdi has requested for the grant of leave. Leave granted? Granted. Calling attention notice. Item number 3. Sayyid Naveed Qamar Sahab. Thank you, Mr. Speaker. I wish to invite attention of the Minister for Energy from the Petroleum Division to a matter of urgent public importance regarding curtailing domestic production of gas and yet purchasing LNG at much higher prices. Simultaneously, domestic industry is being deprived of gas for captive power plants, further suppressing demand, causing grave concern amongst the public. Minister Petroleum, Musaddiq Malik Sahab. सर मैं बहुत शुक्रिया सर। मैं आपके सामने 2-3 वजाहतें पेश करना चाहूँगा सर। पहली बात तो ये है कि जो हम LNG ख़रीद रहे हैं वो हम अपने जो टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके तहत ख़रीद रहे हैं। हमारे पास इस वक्त LNG सरप्लस है मुल्क में, और जो हम टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के ज़रिए LNG ख़रीदते हैं वो LNG की महंगी कीमत होने की वजह से हम बेच नहीं पाते। जब हमने ओरिजिनली ये LNG के मुआहदे किए थे तो हमारे जहन में ये था कि 600 MMCFD गैस जो है वो बिजली इस्तेमाल करेगी, बिजली के जो LNG के कारखाने हैं।
लेकिन क्योंकि एलएनजी को हमने रिंग फेंस कर रखा है, यानी हमने तमाम गैस की यकसा कीमत नहीं बनाई और हर गैस को हम ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो गैस नहीं कोई और चीज़ हो। ये एलएनजी वाली गैस है, ये 3600 रुपए की है, ये पाइप के अंदर से चल रही है, ये 1200, 1300, 1400 की है, ये वेल हेड में से निकल रही है, ये 600, 700 की है सारी गैस। तो क्योंकि हम यकसा कीमत नहीं रखते गैस की, इस वजह से जो 3600 रुपए वाली गैस है यानी एलएनजी, उसका कोई ग्राहक नहीं है। यहाँ तक कि बिजली भी वो गैस नहीं लेती। कहाँ प्लान किया गया था कि 600 मिलियन यूनिट जो हैं वो एलएनजी के ख़रीदेगी बिजली, और कहाँ पे वो 200-250 ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीद रही है मिलियन यूनिट। तो हमारे पास एलएनजी सरप्लस है। ये तो पहला नुक्ता है। इस एलएनजी के सरप्लस को डील करने के लिए सर हमने कतर से दरख्वास्त की और 5 कार्गो जो हमने इस साल ख़रीदने थे वो हमने अगले साल के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिए। यानी अब हम 5 कम कार्गो ख़रीदेंगे, मगर फिर भी हम एलएनजी में सरप्लस हैं। एक और कंपनी के साथ हम 5 इजाफी कार्गो जो है उसको अगले साल के लिए डिफ़र करने की कोशिश में हैं, और इस वक्त हमारी निगोशिएशंस चल रही हैं, और अगर अल्लाह ने चाहा तो 5 इजाफी कार्गो भी जो हैं वो हम अगले साल पे डिफ़र कर देंगे। अभी जो ख़बर आई थी जिसकी बुनियाद पे हमारे मोअज़्ज़ज़ जो मेंबर हैं और मेरे तो खैर दोस्त और रहनुमा भी हैं, उन्होंने जो सवाल पूछा है वो ये थी कि अगर आपके पास एलएनजी जो आ रही है वो सरप्लस है, तो फिर आपने एक टर्म कार्गो के लिए क्यों दिया कहा है कि हम शायद ये से ख़रीदें। उसकी वजह यह है सर कि हर साल अक्टूबर में हमें एक प्लान देना होता है कतर को कि फ़लाँ दिन एलएनजी का कार्गो आके लगेगा, और उसमें दिन नहीं बदल सकते। एक आध चंद घंटों का तो हेर फेर हो सकता है, दिनों का या हफ्तों का नहीं हो सकता। तो जब हमने ये अपने कार्गो डिफ़र करवाए तो हमने उनको कहा कि जनवरी में जब हमारी ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जनवरी में आप हमें एक इजाफी कार्गो दे दें, क्योंकि जनवरी में जो हमारी गर्मियों में ज़रूरत 200-300 MMCFD की घरेलू इस्तेमाल के लिए या 400 की होती है, वो 1500 तक चली जाती है। मगर उन्होंने इनकार कर दिया। तो जनवरी के महीने में बिकॉज़ कतर ने हमें इनकार कर दिया एक इजाफी कार्गो देने से, इस वजह से जनवरी के महीने में मखसूस महीने में हमें कम से कम एक कार्गो की ज़रूरत थी। इसलिए अवाम की सहूलत के लिए ये ज़रूरी था कि एक कार्गो का टेंडर कम से कम फ्लोट कर दिया जाए और फिर देखा जाए हमारी डिमांड कैसे चलती है। लेकिन ये ना हो कि इमरजेंसी में हम टेंडर जनवरी का टेंडर जनवरी में ढूंढ रहे हों और वो बहुत दुगनी कीमत पे हमें मिल रहा हो। इस वजह से वो एक कार्गो जो कतर ने कहा कि वो हमें जनवरी में किसी भी सूरत नहीं दे सकते और जो हमारी नेशनल ज़रूरियात में कम था, उसके लिए एक टेंडर दिया गया है। ये तो उसका जवाब है। मगर जो दूसरा सवाल पूछा है नवीद कमर साहब ने, वो उससे बहुत ज़्यादा अहम है। वो है साहब ये कैप्टिव ये जो एनर्जी है उसका। स्पीकर साहब, मैं आपके सामने ये गुजारिश करूंगा कि ये कैप्टिव पावर के ख़िलाफ़ जो ओरिजिनली गुफ्तगू शुरू की थी वो मैंने ही शुरू की थी, और उसकी वजह ये थी कि कराची ले लीजिए, कराची का एक इंडस्ट्रियल एरिया ले लीजिए। उस इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ तकरीबन 2-2.5 हज़ार प्लांट्स थे, जिनमें सिर्फ 18 के पास कैप्टिव पावर थी। अब जिन 18 के पास कैप्टिव पावर थी वो 13 रुपए की बिजली बना रहे थे, और जो के इलेक्ट्रिक से बिजली ले रहे थे वो 60 रुपए की बिजली ले रहे थे, और बना दोनों सूतर और कपड़ा रहे थे। यानी वो छोटी एंटरप्राइज जो खुद बिजली नहीं बना सकती, दे डिडंट हैव अ चांस इन हेल टू सक्सीड। इस वजह से मैंने उस वक्त ये कहा कि कैप्टिव पावर को रैशनलाइज किया जाए, मगर अब तो वो रैशनलाइज हो चुकी। यानी कीमत कैप्टिव की इतनी बढ़ा दी गई है कि अब एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन चुका है। इस वजह से कैप्टिव को बंद करने का अब बज़ाहिर कोई इकोनॉमिक जवाज नहीं रह गया। लेकिन
जब हमारी ये दरमियान में केयर टेकर हुकूमत थी तो जब मुआहदे IMF से फाइनलाइज हो रहे थे। मुसद्दिक मलिक साहब, ब्रीफ स्टेटमेंट होता है, इसके 4 सवाल उन्होंने और भी ऑनरेबल मेंबरान ने पूछना है। जी मैं कंक्लूड जुम्मे का टाइम जी, है, उस वजह से IMF का जो रिटन कॉन्ट्रैक्ट जो तय हुआ था केयर टेकर हुकूमत में, उसके मुताबिक जनवरी में हमने ये कैप्टिव पावर बंद करनी है। लेकिन सर हम इस वक्त भरपूर अंदाज में IMF के साथ भी और दीगर मल्टीलैटरल की सपोर्ट के साथ उनके पास हम अपना पूरा एजेंडा लेकर गए हैं कि ये कैप्टिव पावर को बंद करना मुल्की मुफाद में नहीं है, इकनॉमिक मुफाद में नहीं है, अकाउंटिंग के नुक्ता नज़र से इसकी कोई सेंस नहीं बनती और आप एफिशिएंट यूज़ ऑफ एनर्जी को तब्दील कर रहे हैं इनएफिशिएंट यूज़ के अंदर। इस वजह से इस वक्त जो हमारा महकमा या हमारी वजारत जो है वो भरपूर मुकदमा लड़ रही है कि LNG ये जो कैप्टिव पावर है इसे बंद नहीं किया जाए, मगर इस वक्त IMF का मैंडेट बहरहाल हम पर है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम उनसे निगोशिएट कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। जी, नवीद कमर साहब टू आस्क 1 क्वेश्चन। सर, कहते हैं कि वो सारे फसाने में जिसका जिक्र न था वो बात उनको बड़ी नागवार गुजरी है। सर, मेरा कंसर्न ये है कि हमारी अपनी गैस है, इन्होंने तो कह दिया कि कोई फ़र्क नहीं है, एक अगर बाहर से आ रही है गैस और पाकिस्तानी गैस में एक ही चीज़ है, गैस तो गैस होती है, लेकिन अगर पाकिस्तान से निकल रही है, एक तो सस्ती है, आधी कीमत से भी कम है वो, क्योंकि आपके जो ENP कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ कंपनीज के साथ किए हुए हैं उस पर आप सस्ती ख़रीद रहे हैं, तो आगे जब बेच रहे हैं उसको पाइपलाइन के थ्रू तो वो भी आप सस्ती बेचेंगे, या कम से कम जो जिनको भी ये डोमेस्टिक गैस जा रही है उनको सस्ती मिलेगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो मसला है वो ये है कि हम इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं जब हमारे पास डोमेस्टिक गैस है, लेकिन हमने उसको रोका हुआ है कि नहीं। और ये नहीं है कि 10-15 MMCFD की हम बात कर रहे हैं, पूरे कम से कम 400 MMCFD जो है इस वक्त रोका हुआ है हमने। ये वो नहीं है जो कि पीछे हैं, जिनकी पाइपें अभी बिछनी हैं, जो फील्ड्स अभी कनेक्ट होनी, ये फील्ड्स वो हैं जो कि कनेक्ट हैं, और कनेक्टेड फील्ड्स को की प्रोडक्शन स्केल बैक करके, और हम कह रहे हैं कि नो वी नीड टू टेक इन मोर LNG। आपने टर्म कॉन्ट्रैक्ट की बात की, टर्म कॉन्ट्रैक्ट आपका कतर के साथ है, आपका अज़रबैजान के साथ टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अज़रबैजान के साथ तो आपका सिर्फ ये है कि वो ऑफ़र करेंगे, आपको ज़रूरत तो ले लेंगे, नहीं ज़रूरत तो ना लें। तो प्लीज़ डोंट कंफ्यूज द टू इश्यूज़। First, take your domestic gas. It's cheaper. There's no foreign exchange involved in it. और उसके बाद ही आप देखें कि आपको बाकी सरप्लस की क्या ज़रूरत है। हम जनवरी की डिमांड की बात कर रहे हैं, जाहिर के डिमांड आप जहाँ गैस जा रही है, आई एम ग्लैड कि ही एक्सेप्टेड द फैक्ट कि ये जो कैप्टिव वाला इन्होंने अग्रीमेंट किया है IMF के साथ, दैट गोज़ अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन हमारे बाबू जाते हैं वहाँ जाके हर हाथ पैर अपने बांध के आ जाते हैं विदाउट कंसल्टिंग विद द स्टेक होल्डर्स। बगैर स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के आप कैसे कंडीशनैलिटीज़ मान के पीछे से आ जाते हैं। सो व्हाट आई वुड ask the Honourable Minister is, in the presence of domestic gas availability, what is the fun of going for imported cargoes? And secondly, are they going to keep on pursuing this policy, or at some point in time you will start taking the domestically produced gas at a priority over the imported gas? शुक्रिया। मुसद्दिक मलिक साहब, गैस अपनी होते हुए क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं आप? जी सर, ये बिल्कुल वो मैं आपने क्योंकि मुझे तंबीह की सर तो मैं बैठ गया, वरना तो मैं भी इस सवाल का जवाब देने वाला था, मगर बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी दे दें। जी सर, वो पहली बात सर, पहले गलत जवाब देता हूँ फिर सही जवाब दूंगा सर। सो गलत जवाब इसका ये है सर कि जनवरी में जो हमारी वेल हेड गैस है उसकी कर्टेलमेंट ज़ीरो होगी।
यानी जनवरी में 100% जो वेल हेड गैस है जो अभी कर्टेल्ड है, सही कह रहे हैं। मैं अभी उसका जवाब आपको सही जवाब में सही की तरफ बाद में आऊँगा। गलत जवाब ये है, जो है असल में है सही मगर है गलत, वो ये है कि जनवरी में कोई सर कंटेनमेंट नहीं हो रही होगी वेल हेड गैस की। 100% वेल हेड गैस 850 MMCFD जो है वो पाइपों में आ रही होगी। उसके अलावा जो LNG हमारे टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आ रहे होंगे। उसके बावजूद एक कार्गो जिसके लिए टेंडर किया गया है वो शॉर्ट होगा। ठीक है सर, ये हो गया गलत सही जवाब। अब मैं आपको देता हूं सही जवाब सर। सर मैं माफी चाहता हूं, मैं तो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। जी मुसद्दिक मलिक साहब। सर मैं माजरत चाहता हूँ, सॉरी आपका टाइम मैंने ज़्यादा ले लिया। वो मेरे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहब तो ठक ज़बरदस्त जवाब देते, मैं ज़रा लॉन्ग विंडेड हूँ तो थोड़ा लंबा वक्त लग जाता है, लेकिन मैं रैप अप करता हूँ। जी मैं रैप अप करता हूँ। देखिए सर, इसका सही जवाब ये है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, जनवरी को निकाल दें, जनवरी में कोई कंटेनमेंट नहीं हो रही होगी। कर्टेलमेंट मैंने आपको पहले बताया वो इस वजह से होती है कि हमारी LNG की कीमत ज़्यादा है। जब तक हम तमाम गैस की कीमत यकसा नहीं करेंगे सर, ये नहीं बिकेगी। जब ये नहीं बिकेगी सर, तो क्योंकि आपका इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट है, आप उसके डिफ़ॉल्ट में चले जाएंगे, आपको ये लेनी पड़ेगी। जब आप इसको लेंगे और आगे नहीं बेच सकेंगे तो आपको डाइवर्ट करनी पड़ेगी, चूल्हों में जलानी पड़ेगी। यानी 3600 रुपये की गैस आपको 800, 900, 1000 में बेचनी पड़ेगी। यानी आपको हर मिलियन फुट जो आप बेचते हैं उसके ऊपर तकरीबन 2500 रुपये का नुकसान लेना पड़ेगा सर। ये 2500 का नुकसान या सर्कुलर डेट में जाएगा और मुल्क को बर्बाद करेगा, और या ये अगली रेवेन्यू रिक्वायरमेंट में जाएगा, यानी हर 6 महीने के बाद गैस की कीमत बढ़ती चली जाएगी। इसका वाहिद हल ये है कि गैस की यकसा कीमत की जाए ताकि गैस बिके, ताकि आपकी जो LNG है अगर यकसा कीमत के ऊपर वो बाज़ार में होगी तो तमाम बिजली के कारखाने उससे चलेंगे, इंडस्ट्री उसको इस्तेमाल करेगी और घरेलू सारिफ भी उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये सर इसका सही जवाब है। इसमें नवीद कमर साहब और दीगर जो मेरे दोस्त हैं सर, मुझे इनसे रहनुमाई और सपोर्ट चाहिए होगी कि यकसा प्राइस करने का जो मैकेनिज़्म है वो किसी ऐसे तरीके से तय किया जाए जिसमें ये पूरा हाउस सर, राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड सर, ठीक है, ये तमाम इकट्ठे होके इसको आगे बढ़ाएं ताकि अवामी मुकदमा और मुल्की मुकदमा जो है वो हम लड़ सकें। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। सैयद रफ़ीउल्लाह साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। थैंक यू जनाब स्पीकर। सर अगर आप
सर अगर आप क्वेश्चन आवर को डेफर करने का हुक्म सादर फरमा देंगे तो मेहरबानी होगी, मैं क्वेश्चन कर दूं। वो क्वेश्चन हमारे जो है वो डेफर कर दें सर। आपको मौका दे रहा हूं इस कॉल नहीं कैसर साहब, असद कैसर साहब, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें अगर जरूरी बातें, हमने तो इनसे आंसर ले लें। सर ये बिजनेस है सर, असद कैसर साहब हाउस का बिजनेस है सर, ऐसा ना करें सर। नो क्रॉस टॉक, आप चेयर को एड्रेस करें। ओके सर। सर देखें, अगर इनको इमरान खान के हवाले से कोई बात करनी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, हमें बात करने दें, हाउस का बिजनेस चलाने दें। सर मेरा सवाल ये है कि एक तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे क्वेश्चन डेफर करवा दें, वो मिनिस्टरों की वजह से रुके हुए हैं, नंबर 1। दूसरा मेरा ये कि सर ये ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से, सर मेरा ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से क्वेश्चन है कि ये ईरान गैस पाइपलाइन का आपके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में ईरान भी किया है, और यहाँ पर अमेरिकन एम्बेसडर से भी क्वेश्चन किया, वो कह रहे हैं कि आप रिव्यू में जाएं, आप कहें तो सही, हम उसके ऊपर आपके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। तो उसके रफीक ऊपर साहब एक सवाल पूछे प्लीज। सर मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि ईरान गैस पाइपलाइन, वो ईरान आपके खिलाफ इंटरनेशनल अदालत में भी गया, जी, तो मुसद्दिक मलिक साहब, ईरान की पाइपलाइन। सर मैं एहतराम, सर आपके एहतराम सर मैं आपके एहतराम में कह रहा हूँ। सर मैं अपने दोस्तों को जो दाएं बाजू बैठे हैं उनके एहतराम में ये कहना चाहूँगा कि ये सवाल लिख के हमें भेज दें, और ये सवाल की शक्ल में आ जाएगा और हम आपके सामने हाजिर हो जाएंगे ताकि उनका वक्त ज़ाया ना हो। ये आज के सवाल है नहीं सर। ओके, शुक्रिया। सैयद अमीनुल हक साहब नॉट प्रेजेंट, मिस्टर नूर आलम साहब नॉट प्रेजेंट, शाजिया मरी साहबा टू आस्क 1 क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया डेप्यूटी स्पीकर साहब। पहले तो ऑनरेबल मिनिस्टर की रहनुमाई जो उन्होंने जिक्र किया, उनको रहनुमाई की ज़रूरत है, वो पाकिस्तान का आइन पढ़ लें। आर्टिकल 158 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज which talks about priority of requirement of natural gas. 158, the province in which a wellhead of natural gas is situated shall have precedence over other parts of Pakistan in meeting the requirements from that wellhead, subject to the commitments and obligations as on the commencing day. सबसे पहले तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कहूँगी कि पाकिस्तान के आइन का एहतराम करें। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 158 के तहत जहाँ जहाँ वेल हेड जिस सूबे में सिचुएटेड है उसको नेचुरल गैस उसकी डिमांड के तहत दी जाए। और अब मैं आती हूँ कि इस नेचुरल गैस को आप किस तरीके से पाकिस्तान के हक़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को मैं सुन रही थी तो उन्होंने जो ऑनरेबल नवीद कमर साहब ने फरमाया कि वो तमहीद बांधी और फिर बार बार उसी चीज़ पर गए, हालांकि सवाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। सवाल ये है कि जो नेचुरल गैस हमारी अपनी लोकल गैस है, पहली बात तो ये आप एडमिट करें इस फ्लोर पे कि आप बुरी तरह फेल हो चुके हैं नए रेजर्वॉयर्स एक्सप्लोर करने के हवाले से। आपके पास अब आप कहते हैं गैस नहीं है, अब आप आ जाएं RLNG जिस पे आप बार बार जिद करके हमें बता रहे हैं। हम तो आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि विंटर मंथ्स में जहां डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की ज़रूरत डिमांड बढ़ चुकी है, ख़ास तौर पे सर्द इलाकों में जहां हीटिंग की ज़रूरत है और हर एक को कुकिंग के लिए गैस चाहिए, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को गैस नहीं मिल रही है इस वक्त। ये हकीकत है। अगर इस फ्लोर पे आप सही और गलत जवाब की बहस में पढ़ के हमारा और आवाम का टाइम वेस्ट करेंगे तो ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन ये हमारी हरगिज़ जिम्मेदारी नहीं है। सर मैं आ रही हूँ इस बात पे कि आपने कहा कि कैप्टिव पावर प्लांट्स को जिंदा रखें, ठीक है रखें, ठीक है। आप कह रहे हैं कि RLNG के ग्राहक नहीं है आपके पास। आप ये RLNG जो कि महंगी गैस है, आप ये कैप्टिव पावर प्लांट्स को देने के बजाय कंज्यूमर से डाइवर्ट। अब आप तकरीर तो नहीं कर सकते ना शाजिया मरी साहब, आप इतनी सीनियर वो हैं। यू कैन आस्क 10 क्वेश्चंस, प्लीज बी ब्रीफ। जी शाजिया मरी साहब का माइक खोलें, प्लीज बी ब्रीफ, वाइंड अप करें। डिस्पाइट द फैक्ट कि डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की डिमांड इस सीजन में बढ़ गई है
despite this reality, गैस डाइवर्ट हो रही है कैप्टिव पावर प्लांट्स को, नेचुरल गैस। आप कैप्टिव पावर प्लांट्स को चलाएं, हमने मना नहीं किया, उनको आप RLNG पे प्राइसेस पे गैस दें। ठीक है, ओके मुसद्दिक मलिक साहब प्लीज अब रेफर करें, जुमे का टाइम है, नहीं तकरीर तो नहीं हो सकती शादिया मलिक साहब, आप दिस इज नॉट फेयर, आप चेयर का कहना नहीं मान रहे, नहीं जी। शाहजहां मरी साहब का माइक खोलें। Sir, I reject the ridiculous idea of bringing the imported gas and local gas on at one price. I reject it, I condemn it, and please do not even say something like this when the Ain of Constitution of Pakistan is right before you. So please do not do this, make a mockery out of this whole issue. जी मुसद्दिक मलिक साहब प्लीज ब्रीफ, जुमे का टाइम है, अभी मैंने ऑपोजिशन में से ऑनरेबल मेंबर को टाइम देना। जी 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 बोलें। जी मुझे तो अंदाज़ा नहीं हुआ मैंने क्या कहा जिस पे इस कदर नाराज़गी हो गई। मैं तो आइन के ताबे हूँ और मैं तो आर्टिकल 158 को पूरा मानता हूँ, यानी आपने खुद ही क़यास दौड़ा लिया कि मैं आर्टिकल 158 के ख़िलाफ़ हूँ। मैंने आपसे कब कहा है कि जिन सूबों के अंदर वेल हेड गैस है उनका पहला हक नहीं होना चाहिए। मैं तो सिर्फ प्राइसिंग की बात कर रहा हूँ, हक की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि देते रहें। मैं तो आपको एक तरीक़ाकार, भाई नाराज़ हो गए यार, आज तो आप लोग सारे बड़े नाराज़ हुए हैं। एड्रेस द चेयर, नो क्रॉस टॉक प्लीज। स्पीकर साहब मैं आइन के ताबे हूँ, किसी आइनी वायलेशन को किसी भी सूरत सपोर्ट नहीं करूँगा, सपोर्ट नहीं कर रहा। जो आइन में लिखा है उसी के तहत हम सिस्टम को चला रहे हैं। जो मैंने आपके सामने चीज़ रखी है उसका ताल्लुक एक्सेस से नहीं, सिर्फ प्राइसिंग से, और प्राइसिंग के ज़रिए सिर्फ हम चाहते ये हैं कि सारी गैस चले। और जो मैडम MNA ने कहा है उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, हम उनको LNG की प्राइस पे ही कैप्टिव को दे रहे हैं। इस वक्त 3200 रुपये हम की गैस दे रहे हैं जो कैप्टिव पावर को, और LNG हम 3600 की ला रहे हैं। डोमेस्टिक कंज्यूमर को तो हम 1000-1200 की गैस दे रहे हैं। इस वजह से डोमेस्टिक कंज्यूमर को तो सस्ती गैस मैडम मिल रही है, और साथ के साथ LNG के भाव तकरीबन 300 रुपये के फ़र्क से जो कैप्टिव पावर है उसको गैस दी जा रही है। तो जो आपने कहा बिल्कुल सर आंखों पे वही हो रहा है। शुक्रिया जी। ये आइटम नंबर 6 एक और कॉलिंग अटेंशन नोटिस था, मगर हाजिर नहीं हैं कैबिनेट के मिनिस्टर ना पार्लियामानी सेक्रेटरी, तो इसको डिफ़र करते हैं। और फॉर द रिकॉर्ड कि जो आज सवालात क्वेश्चन आवर में नहीं हुए वो उनको भी नेक्स्ट रोटा डे पे वो जाएंगे। असद कैज़र साहब ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। असद कैज़र साहब थोड़ा आपके और मेंबरान को भी टाइम देना है, इंजीनियर साहब को भी टाइम देना है, जुम्मे का टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब सबसे पहले तो मेरा आपसे ये गिला बनता है, मैं इस हाउस का कस्टोडियन रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि मैं कोई गैर ज़रूरी बात भी नहीं करता, टाइम भी जो है ना मैं कोशिश करता हूँ कि उसके अंदर बात करूँ। लेकिन अगर आप मतलब रिस्पेक्ट नहीं देते और बात करने नहीं देते तो ये बहुत नामुनासिब है। तो मैं आपसे आज एहतजाजन ये बात करता हूँ, यानी अभी अब टाइम मुझे बताते हैं कि टाइम कितना है, मैंने कम अज़ कम 7-8 मिनट बात कर दी है, तो आप काइंडली इसको जो ना करें। सबसे पहले मैं ये वजाहत करना चाहता हूँ। एक मिनट सुन लें, आपने ये इतना बड़ा सवाल किया है, उस पर गुजारिश मेरी ये है कि एडवाइजरी में ये तय हुआ है कि पहले आप एजेंडा करेंगे उसके बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे। तो हमने एजेंडा जो गवर्नमेंट की मैं अब बार बार वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, जो गवर्नमेंट की बेहिसी की वजह से हमारे सारी जो क्वेश्चन आवर लैप्स हुआ है उस पे पहले आपने मंडे को ट्यूसडे को हमने आपके कहने पे अपोजिशन के कहने पे सबको टाइम दिया, और जो हमारा एजेंडा था उस पे किसी ऑनरेबल मेंबर ने कोरम पॉइंट आउट किया, सारा एजेंडा रह गया। हमारी अवलीन तरजीह है कि हम जो एजेंडा होता है उसको कंप्लीट करें, उसके बाद आपको मौका दें। आप प्लीज़ बोलें। देखिए जी, सबसे एक वजाहत मैं करना चाहता हूँ, कल सी मीडिया में चल रहा है कि कोई डायलॉग हो रही है, कोई मुज़ाकरात हो रही है, और मेरा हवाला किया जा रहा है कि स्पीकर साहब के साथ मेरी इस किस्म की डिस्कशन हुई है। मैं सिर्फ स्पीकर साहब के पास उसकी घर फातिहा के लिए गया था,
वो हमारी कोई डायलॉग, कोई मुज़ाकरात नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि मैं वहाँ उनके साथ मुलाकात जो थी वो पातख़वानी, उसकी हमशीरा के पातख़वानी के लिए गया था। और कल जो मीडिया में रिपोर्ट हो रही थी कि हमारी मीटिंग हुई है और कोई डिस्कशन हुई है, ये बिल्कुल गलत है। मेरी कोई स्पीकर साहब से कल कोई मुलाकात नहीं रही है। तो मैं एक तो वजाहत करना चाहता हूँ, हाँ हमने कमेटी ज़रूर बनाई है और वो कमेटी जब मुनासिब समझेगी और हुकूमत संजीदगी दिखाएगी तो फिर हम उसके हवाले से देखेंगे और हम अपने बानी चेयरमैन से बाकायदा इंस्ट्रक्शन लेंगे, तब कोई आगे बात होगी। नंबर 1। नंबर 2, स्पीकर साहब देखिए, ये इस वक्त जो मुल्क में जो सूरत हाल है और ख़ासकर 26 नवंबर को जिस तरह गोलियां चलाई गई और हमारा 12 कारकुन शहीद हुए, मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि गोली क्यों चलाई, कि गोली क्यों चलाई। सवाल यह है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज को ये हक हासिल नहीं है कि वो अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाए? क्या सियासी पार्टियों, आइन तमाम सियासी पार्टियों को यह हक नहीं देता कि वो अपना मुतालबात रखे? ये कहता है कानून बना है। मैं पूछना चाहता हूं कि आइन में ये बिल्कुल वाज़ेह है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, शहरी हैं, NGOs हैं, जितनी भी इदारे हैं, वो अपना पीसफुल प्रोटेस्ट रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर कोई कानून बनता है कि इस्लामाबाद में ये कानून है, आप जलसा जुलूस नहीं कर सकते, तो ये कानून बुनियादी तौर पर आइन से वायलेशन है। आइन इस किस्म की कोई कानून अगर बनता है तो इस कानून की कोई हैसियत नहीं है। इसलिए मैं मुतालबा करता हूँ कि जो कानून बना है वो गैर आइनी है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। और जिस तरह इस कानून का हवाला दे के इन्होंने नेती शहरियों पे, वर्कर पे, पीसफुल वर्कर पे जो गोलियां चलाई, मैं पूछना चाहता हूं कि कोई यो एक वीडियो दिखाएं कि हमारे किसी वर्कर ने कोई गमला तोड़ा हो, कोई शीशा तोड़ा हो, या उसके पास कोई असला हो। एक ड्रामा किया गया है, पूरा एक तरीके से जो है ना प्रोपेगेंडा किया गया और उसके मुताबिक जो है ना ये वावेला किया गया कि तहरीक इंसाफ के वर्कर जो पता नहीं क्या करना चाहते थे। हम तो अपना, हमारे तो 2 मुतालिबात हैं। हमारे मुतालिबात क्या है? हमारा मुतालिबा सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो हमारी कैदी रहनुमा है, हमारा लीडर इमरान खान और उन तमाम कैदियों को रिहा किया जाए। हमारा मुतालिबा बहुत सिंपल है। अभी हमने ये मुतालिबा किया है और हम इस मुतालिबे को दोहराते हैं कि जो हमारे 26 नवंबर को और 9 मई को जो वाक़यात हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट की सीनियर जजेस के तहत एक कमीशन बनाया जाए, इनकी इंक्वायरी की जाए, पता चल जाएगा कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इस वाक़यात की। आपने इस मुल्क में बुनियादी तौर पर जमहूरियत को ख़त्म कर दिया। इस वक्त मुल्क में कोई जमहूरियत नहीं है, इस वक्त इस पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं है। मैं स्पीकर साहब आपके नोटिस में लाना चाहता हूं, हमारा एक MNA जो इधर बैठा है, इसको जबरदस्ती बुलाया गया, उसको कहा गया कि आप रिजाइन कर दे पंजाब से, हमारा MNA, और उसको कहा गया कि आप स्पीकर के पास जाओ, रिजाइन जमा करवा दो। क्या ये पार्लियामेंटेरियन की इज्जत है? एक कमेटी बनाई गई थी और कमेटी इसलिए बनाई गई थी कि वो पार्लियामेंटेरियन की जो इस्तिखाक के प्रिविलेज है उसको प्रोटेक्ट करेगी। वो कमेटी किधर वो कर रही है? मैं अपने पंजाब के जो हमारे MNAs हैं, मैं अपने तमाम MNAs को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जितना इस यहाँ आज वो हमारे MNAs जितनी मुश्किल से, जितनी तकलीफ से उनकी चारदीवारी की मुसलसल उसको पामाल किया जा रहा है, उनकी जायदादों को जब्त किया जा रहा है, उनके बच्चों और बच्चियों को और ख्वातीन को डराया धमकाया जा रहा है। यानी अमलन पंजाब में मार्शल लॉ है, कोई कानून और कोई आइन नहीं है, कोई ह्यूमन राइट्स की कोई तस्वर नहीं कर सकता कि जितनी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन उधर हो रही है। स्पीकर साहब, ये आपकी चेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने मुअज़्ज़ज़ अराकीन की जो प्रिविलेज है उसको प्रोटेक्ट करें।
ये पंजाब के हमारे एमएनए बेटे हैं, पूछना चाहता हूं, इसी पूछे, इसमें एक एक की अपनी दास्तान है। किसी की घर को तोड़ा गया, किसी की जायदाद को कब्जा किया गया और हर तरीके से जो है ना उसको दबाव में लाया जा रहा है। मैं एक बात, दूसरी बात, जो हमारे यहाँ गुज़िश्ता दिनों अभी मुझे इत्तला मिली है कि जो हमारे वर्कर गिरफ्तार किए गए थे, उन वर्कर के लिए पंजाब के मुख्तलिफ अजला से, लाहौर से, गुजरावाला से, टोबा सिंह से, वहाँ से जो है ना लोग वो आए हैं पुलिस, और उनको मुख्तलिफ वाक़यात में 9 मई को उधर जो है ना उसको उधर लेके जा रही है और कहा जा रहा है। और इसमें मेन कम्युनिटी पख्तून कम्युनिटी है। मोर देन तकरीबन 2000 के हमारे पख्तून इसमें गिरफ्तार है और साथ साथ जो है ना 900 से ज़्यादा इसमें मजदूर हैं, रेडीबान हैं, वो लोग हैं जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। उसको इस वजह से गिरफ्तार किया गया है कि उसके पास पख्तून नेशनलिटी है, पख्तून की जो शनाख्ती कार्ड है, उसकी वजह से उसको जो है ना उसको बंद किया गया है। आप मुझे बताएं, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम एक कौमी पार्टी है, हम नेशनलिज्म और सूबाइयत पे यकीन नहीं रखते। ये जो कुछ कर रहा है स्पीकर साहब, ये जो कर रहा है वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है, वो पाकिस्तान की तोड़ने की साजिश कर रहा है। वो मैसेज वो उन लोगों को नैरेटिव दे रहा है जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करना चाहते हैं। हम इस किस्म की रवैये की मजम्मत करते हैं। इसमें जो रिस्पांसिबल है, जो जिम्मेदार है, उसमें अगर पुलिस आईजी जिम्मेदार है, इसमें अगर इंटीरियर मिनिस्टर जिम्मेदार है, इसमें अगर सेक्रेटरी जिम्मेदार है, इसमें अगर कोई दायरा जिम्मेदार है, तो वो कल रिस्पांसिबल होगा। आप देखें हमारी सूबे में एक एहसासी महरूमी बढ़ती जा रही है। आपने अफगानिस्तान के साथ, मैं मुसलसल इस पे बात पे करता हूँ, जो हमारे भाई जो है ना यहाँ पोस्टर उठाए रखे हैं, जो उधर कुर्रम में जो सूरत हाल है, वफाकी हुकूमत इसकी कोई दिलचस्पी नहीं दे रही है। जो उधर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन गई है, आप देख रहे हैं कि जो हमारी कारोबार थे, जो अफगानिस्तान के साथ हमारा कारोबार चलता था। देखिए, मैं सिर्फ 2 मिनट में बात ख़त्म करना चाहता हूँ और ये बात वजाहत करना चाहता हूँ कि जो हमारा ये बेल्ट है, ये तकरीबन 100 किलोमीटर से ज़्यादा है, जिसमें एक साइड पे भी वजीर, दूसरी साइड पे भी वजीर, एक साइड पे मस्जिद, दूसरी साइड पे भी मस्जिद, यानी एक ही ट्राइब दोनों साइड पे रहते हैं। आपस में उसके कारोबार, उसके रोजगार, उसका लेना देना, आपने भी वो कारोबार बंद कर दिया। आपने हमारी रोजी रोटी हमसे छीना। आप क्या चाहते हैं? आपने हमें कारोबार करने से रोक दिया। हमारा एक ही हमारा अफगानिस्तान के साथ कारोबार होता था, सेंट्रल एशिया के साथ हमारा कोई न कोई बुनियादी, आपने वो भी ख़त्म की। इसलिए मैं मुतालिबा करता हूँ कि इस रवैये को ख़त्म करें। आप अगर एक कम्युनिटी को अंडरमाइन करें, आप अगर जो है ना एक पख्तून कम्युनिटी जो इस वक्त महसूस कर रही है, इस्लामाबाद अमलन पख्तूनों के लिए नो गो जोन बन गया है, नो गो एरिया बन गया है। मैं इस रवैये की मजम्मत करता हूँ और मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से ये तवक्को रखता हूँ, हम सब पाकिस्तानी हैं। सियासत बात की बात है, पहला पाकिस्तान है। सब इस बात पे आवाज़ उठाएं कि ये रवैया जो कर रहा है पाकिस्तान की तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। मैं, चूंकि आप नमाज का भी टाइम है, मैं अपने मुतालिबात दोहराता हूँ। नंबर 1, हमारा मुतालिबा ये है कि इस वक्त इमरान खान और जितने कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। जो हमारे वर्कर्स, जो हमारे गरीब वर्करों को इस वक्त पाबंदी सरासर किया गया है, उसके ऊपर मजीद पर्चे बनाए जा रहे हैं, इनको कानून के मुताबिक रिहा किया जाए। और ये देखो, ये कानून का और इंसाफ का जनाजा निकाल रहे हैं। ये जो जस्टिस सिस्टम है, इसका जो है ना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह ये नई नई केसें ला कर, उनका ख्याल है कि ये दब जाएंगे। एक बात बिल्कुल क्लियर है कि किसी सूरत में अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। हम खड़े हैं, इमरान खान के साथ डट के खड़े हैं। और दूसरा हमारा मुतालिबा ये है कि 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट की सीनियर जजेस के उसमें, और वो इंक्वायरी करवाए। जी शुक्रिया। इंजीनियर हमीद साहब, 2 मिनट हैं, इसके बाद फिर अब मंडे को ही हो गए जी, अभी नमाज का टाइम हो रहा है। जी इंजीनियर हमीद साहब, मैं देना चाह रहा था जनाब स्पीकर, वैसे भी मुझे हर वक्त 2 मिनट ही दी जाते हैं, मैं बात ज़्यादा लंबी नहीं करता। मैं सिर्फ ये बताने के लिए, आज मैंने ये देख ले
वो पुराना अपना हमारा जो रिवायात के मुताबिक पगड़ी इसलिए पहनी हुई है कि लोगों को ये अंदाज़ा हो जाए कि हम कौन हैं। मेरे रोज़ एहतजाज से जनाब स्पीकर कोई उसका रिजल्ट नहीं आ रहा और हालात ऐसे हैं कि मजीद इंसानी अलमिया पैदा हो रहा है। रोज़ाना लोग भूखों के और मरीज दवाइयों की वजह से मर रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कह दूं कि ये हुकूमत जो 25 किलोमीटर से तोप के गोले हमारे सेंटर कोरों पे फेंक रहे हैं, आया उन तोप के गोलों पे ये लिखा हुआ है कि ये दहशतगर्दों के पास जाएंगे? उधर जाके आबादी पे ये गोले गिर रहे हैं, आबादी को निकलवाने के लिए ये कर रहे हैं। ये कैसी हुकूमत है, कैसी एजेंसियां सिक्योरिटी की मरवा रहे हैं। मैं आज सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर मरवाना है, अगर इलाका खाली करवाना है, वैसे भी बार बार ये कहा जा रहा है, ये इल्तिजा की जा रही कि ऑपरेशन की इजाजत दी जाए, तो एक बार ऑपरेशन के लिए इजाजत दी जाए ताकि हमारी ऊपर बमबारी करके ये 8 लाख आबादी एक ही दम खत्म कर दे और जो मकासद है उनके हासिल हो जाएंगे। और वो इलाका जो खाली करवाना चाहता है और उस पर उनका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा और एक ही बार सारी आबादी ख़त्म हो जाएगी और मकासद इनके हासिल हो जाएंगे। तो मैं इस हाउस से मैं ये फिर एक बार कहता हूँ कि मरवाना है, इस तरह क्यों मरवा रहे हैं? कभी भूख से मर रहे हैं, कभी दवाइयों की वजह से मर रहे हैं, तो हमारे ऊपर बमबारी कर दे, एक ही दम हमें ख़त्म कर दे ताकि इनकी मकासद हासिल हो जाएं। थैंक यू सर। शुक्रिया। The House is adjourned to meet again on Monday, the 16th December 2024 at 5 p.m.